یہ سال 1995 کی بات تھی جب ترکی کے مقام شانلی میں آرکیولوجسٹ کلاؤس اسمڈ نے ایک قدیم کھنڈر کو دریافت کیا، لیکن کلاؤس نے اس 11,000 سال پرانی کھنڈروں کے ستونوں پر پتھر سے کھدی ایک ایسی تصویر دیکھی جس سے وہ حیران رہ گیا۔ ان تصویروں میں بنی مخلوق کے چہرے جانوروں جیسے اور جسم انسان نما تھا۔ ماہرین یہ سوچ کر حیران تھے کہ آخر 10,000 سال قبل پتھر کے دور کے انسانوں نے اس طرح کی مخلوق کی امیجنیشن آخر کیسے کی ہوگی۔ سال 1957 میں ہندوستان کے بھیم بیت کے غاروں کے اندر بھی آرکیولوجسٹ کی ٹیم کو ایک ایسی ہی نقاشی ملی جن کا آدھا جسم انسان اور آدھا جسم شیر، بھیڑیا یا سانپ یا کسی دیو جیسا تھا۔ پیرو، مصر، عراق اور میکسیکو کے قدیم کھنڈرات، غار اور مٹی کے تختیوں پر کھدی اس طرح کی ہیومنوئڈ کریچرز کی اور بھی کئی تصویریں ملی ہیں جو آج ایکسپرٹس کے لیے ایک نہ سلجھنے والی پہیلی ہے۔ ان میں کچھ مخلوقات کے سروں پر سنگ دکھائی دیتے ہیں، کچھ کے پاؤں جانور جیسے ہیں، تو کچھ کا جسمانی اسٹرکچر عجیب و غریب ہے۔ کیا قدیم دور میں یہ انسان نما مخلوق ہمارے ساتھ اسی زمین پر رہا کرتے تھے؟ وہ تمام پر اسرار مخلوق کہاں چلے گئے؟ اور قرآن مجید میں موجود ملک سبا کی ایک ملکہ کا ان عجیب مخلوقات سے کیا تعلق تھا؟ وقت کے دھاگوں اور انسانوں کے تصورات نے مل کر ایک ایسی پر اسرار دنیا کی تخلیق کی ہے جو ہمیں اس دنیا میں غیر معمولی طاقتوں اور چیزوں کے ہونے کا احساس کراتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانی چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ عجائب گھروں میں رکھی ہر چیز جو جتنی پرانی ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں پرانی لوک کہانیاں اور واقعات کسی بھی پرانی چیزوں سے کئی زیادہ قیمتی اور بیش قیمت چیز ہے۔ تاریخ کے گلیوں میں قدم رکھنے سے ہمیں صرف بادشاہوں اور جنگوں کی آوازیں ہی نہیں ملتی، بلکہ کچھ ایسے مخلوقات کی سرگوشیاں بھی سنائی دیتی ہیں جو کبھی اس زمین پر موجود تھے مگر وہ انسان نہیں تھے۔ دراصل دنیا بھر کے آثار قدیمہ سے ہمیں ایسی تصویریں، مجسمے اور مورتیاں ملی ہیں جو کسی سادہ یا عام انسان جیسی معلوم نہیں ہوتی۔ مصر کی سرزمین میں ہمیں ہورس اور انوبس جیسے مخلوقات دکھائی دیتے ہیں جو آدھے انسان اور آدھے باز یا کتے تھے۔ یونان میں آدھے انسان اور آدھے گھوڑے والا سینٹور کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہندوستان کے لوک کتھاؤں میں ناگا کے پینٹنگز، مورتیاں اور قدیم مندر ہزاروں سال سے موجود ہیں جن کا انسان نما چہرہ اور سانپ نما جسم ہوتا ہے۔ سالوں سے ماہرین ان عجیب کریچرز پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ آج تک کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے کہ آخر کھنڈرات، ستونوں اور غاروں کے دیواروں پر ایسے ہیومنوئڈ مخلوقات کیوں بنائے گئے تھے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم دور کے انسان جانوروں کی خوبیوں کے ساتھ خود کو جوڑنے کے لیے اس طرح کی عجیب و غریب تصویریں بنایا کرتے تھے۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اس دور کے انسانوں نے ایسی عجیب مخلوقات کو خواب یا روحانی مراقبے میں دیکھا تھا جو ان کے ذہن میں چھپ گیا تھا، جبکہ کچھ ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مخلوق دراصل جینیٹک ایکسپیریمنٹ یعنی انسان اور دوسرے جانوروں کے کراس بریڈنگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ ہیومنوئڈ کریچرز محض خیالی اور افسانوی نہیں بلکہ حقیقت میں وجود رکھتے تھے۔ بعض مسلم علماء اور صوفیہ کے مطابق ہزاروں سال قبل جنات نے انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، اور اس تعلق کی وجہ سے ہی ایسی نسلیں پیدا ہوئی تھیں جو نہ مکمل انسان تھے نہ مکمل جن۔ لہٰذا یہ وہی ہائبرڈ مخلوق ہو سکتے ہیں جن کی تصویریں اور قصے ہمیں دنیا کے ہر علاقے میں ملتی ہیں۔ ان کی آنکھیں غیر معمولی، جسمانی اسٹرکچر عجیب و غریب، اور صفات ایسی تھی جنہیں انسانوں نے دیوتا سمجھ لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن حقیقت میں یہ مخلوق نہ انسان تھے نہ جانور، بلکہ یہ ایسی جناتی نسلیں تھیں جو زمین پر کچھ عرصے تک آباد رہے، لیکن آج صرف ان کی خاموش نشانیاں ہی باقی بچی ہیں۔ بائبل کے کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ شیطان سانپ کی ایک ایسی نسل کی بھیس بدل کر اماں ہوا کے پاس آیا تھا جو بول سکتا تھا
और उसने अम्मा हुआ से बातें की थी। इस्लामी रिवायतों में हजरत इब्ने अब्बास का कौल भी मौजूद है, जिसमें इब्लीस जब जन्नत में दाखिल होता है तो वो एक सांप बन जाता है। यानी ये बात साफ है कि न सिर्फ जिन्नात किसी भी जानवर या इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, बल्कि बोल और समझ भी सकते हैं, क्योंकि इब्लीस दरअसल एक जिन ही था। जिन्नात अपनी इसी खासियत की वजह से इंसानों के करीब आया और उनसे ताल्लुकात बनाए। दरअसल कदीम ज़माने में पूजे जाने वाले अक्सर देवी देवता, अफसानों में जिक्र किए गए भूत, चुड़ैल और बदरूहें, आसमान से आने वाली गैर मरई मखलूक, यहाँ तक कि आज के जदीद दौर का एलियन भी कोई दूसरी मखलूक नहीं, बल्कि ये दरअसल जिन्नात ही हैं, जिन्हें हर दौर में लोगों ने देखा और अपने अपने समझ और अकीदों के मुतालिक उनके बारे में अकीदा बना लिया। जिन्नात की दुनिया और उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल हम इंसानों जैसी ही होती है। वो इंसानों की तरह ही शादी करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। कदीम लोक कहानियों और किताबों में जिन्नात का इंसान से मोहब्बत, ताल्लुक और शादी के भी वाक़यात मिलते हैं। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान मिट्टी के गारे से बनाया गया, जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। लिहाजा आग और पानी का आपस में मिलाप और औलाद का होना अकल के खिलाफ समझ आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा हुए, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जिन्नात अपनी आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय हज़रत आदम के फिर दोबारा कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया। इसी तरह जिन्नात का पहला जद्द अमजद और तमाम जिन्नात का बाप आग से पैदा किया गया था, लेकिन फिर उसकी नस्लों में आग का अंसर बाकी नहीं रहा, बल्कि उन जिन्नातों के भी हाथ, पाँव और दूसरे अज़ा आम हालत में बदल गए। जैसा कि एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि आपको नमाज में शैतान नजर आया तो आपने उसका गला घोंटा, आपने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से लाब दहन गिर पड़ा। हुजूर ने अपने हाथ में उसके ज़बान से गिरने वाले लाब को महसूस किया, जो बहुत ही ठंडा था। शैतान के मुंह से लाब दहन निकलना और हुजूर का उसे महसूस करना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरी हालत में तब्दील हो चुका है, वरना उसमें ठंडक मौजूद न होती। तो क्या जिन्नात में भी इंसानों जैसी खुसूसियात होती हैं और क्या वो इंसान से ताल्लुक बना सकते हैं? ये एक सवाल बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। जिन्नात और इंसानों में शादी या जिनसी ताल्लुकात के वाक़यात इस्लाम से कबल और ज़हूर इस्लाम के बाद भी मिलते हैं। लिहाजा इब्ने असाकिर में एक रवायत मौजूद है जिसके मुताबिक एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में काहिनों और पेशन गोइयाँ बताने वालों का जिक्र छिड़ा और इस सिलसिले में लोग अपने चश्मदीद वाक़यात बयान करने लगे। इब्ने कैस ने बताया कि मुझे भी इस सिलसिले में एक इत्तफाक पेश आया है। अय्याम जाहिलियत में मेरे पास एक लौंडी थी जिसका नाम खलसा था। उस लौंडी ने एक रोज़ हमें बताया कि इन दिनों मुझ पर एक अजीब हालत गुजर रही है और मैं डरती हूँ कि तुम मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम न लगा दो। बात यह है कि हर रोज़ एक सयाह फाम मखलूक मुझसे हम बिस्तर होता है। चुनांचा चंद माह बाद वो लौंडी हामला हो गई। फिर वक्त मुकर्ररा पर उसने एक बच्चा जना जिसके कान कुत्ते की तरह थे और उसकी शक्ल भी आम इंसानों जैसी नहीं थी। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो काहिनों की तरह बातें करने लगा और लोगों को आइंदा के हालात और गैब की खबरें बताता था। आखिर एक रोज़ वो अचानक खामोश हो गया। लोगों के बेहद इसरार पर भी कुछ नहीं बताता। फिर उसने कहा कि मुझे एक कमरे में 3 रोज़ के लिए बंद कर दो। चुनांचा ऐसा ही किया गया। 3 रोज़ बाद वो उस कमरे से बाहर आया तो उसने हमें ये खबर दी कि आखिरी नबी मक्का में माबूस हो चुके हैं और मेरी ज़बान बंद कर दी गई है। अब मैं गैब की कोई खबर नहीं बता सकता। इसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया और वहीं मर गया। इस वाक़े को मुख्तलिफ रिवायतों में रद्द बदल के साथ नकल किया गया है और बाज़ रिवायतों में ये भी इजाफा मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तस्दीक फरमाई।
इंसानी तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात का जिक्र मिलता है जिसके मुतालिक मिलने वाले सोर्सेस ये बताती हैं कि वो ना ही मुकम्मल इंसान थे ना मुकम्मल जिन्नात, इसलिए लोगों ने उन्हें कोई आसमानी मखलूक बना दिया। मसलन कदीम सुमेरी तहजीब में 4000 साल पहले मौजूद एक बादशाह गिलगामिश के मुतालिक कदीम सुमेरी तख्तियाँ बताती हैं कि उस वक्त आसमान से हुम्बाबा नामी एक जिन्नाती मखलूक इस ज़मीन पर आई थी और उन्होंने इंसानों के साथ इख्तिलात किया, जिसकी वजह से गिलगामिश पैदा हुआ। इसलिए सुमेरी लोग बादशाह गिलगामिश को कोई रूहानी मखलूक मानते थे, यहाँ तक कि उसे बेपनाह ताकत मिली थी और उसकी उम्र भी आम इंसानों के मुकाबले में बहुत लंबी थी। आधे इंसान और आधे जिन्नुमा मखलूक में तारीख की एक मशहूर शख्सियत का नाम भी शामिल है, जिसे मलका सबा बिल्कीस कहा जाता है और जो यमन की मलका थी। यमन के दारुल हुकूमत सना से 120 किलोमीटर के फासले पर कसर बिल्कीस के बास सतून आज भी मौजूद हैं, जिसमें उसकी अजीम सल्तनत की कहानियां कुंदा हैं। तारीख में मलका सबा को एक ताकतवर और अक्लमंद औरत बताया गया है। रिवायतें बताती हैं कि उनके वालिद का नाम हद्दाद बिन शराहील था, जो यमन के बादशाह थे, लेकिन उन्होंने एक जिन्नी औरत से शादी की थी, जिसके नतीजे में बिल्कीस पैदा हुई। चुनांचा वो आधी औरत और आधी जिन थी। उस जमाने में यरूशलेम की तरफ एक अजीम पैगंबर और बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत कर रहे थे। रिवायतों में हजरत सुलेमान और मलका बिल्कीस के दरमियान खत व किताबत और ताल्लुकात का एक तवील किस्सा मौजूद है, जिसमें आखिरकार मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का लोहा मानकर उनके दरबार में हाजिर होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल में शीशे का फर्श बनवाया था, जिसे देखने पर ऐसा मालूम होता था गोया वो पानी का हौज हो। लिहाजा जब मलका सबा वहां हाजिर हुई और उस शीशे पर कदम रखा तो वो धोखे में आकर अपने पाँव के ऊपर से कपड़े उठाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि ये पानी है। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी पाँव की तरफ देखा तो उसके पाँव आम इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि वो बालदार थे। इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक ऐसी मखलूक को देख रहा हूँ जो ना मुकम्मल इंसान है ना मुकम्मल जिन। रिवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान ने उसे इस्लाम की दावत दी और उसने दीन हक को कबूल कर लिया। बाज़ रिवायतों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का भी जिक्र मिलता है, जो आपकी एक बीवी से पैदा हुआ था। अल्लाह की कुदरत से वो एक अजीबुल खिलकत मखलूक था। उस लड़के का सिर्फ एक कान, एक आँख और एक हाथ था और बदन का हर उज़ू आधा मालूम होता था। हजरत सुलेमान के इस इंसान नुमा बेटे का जिक्र सूरह साद में कुछ इस तरह आया है, और बेशक हमने सुलेमान को आजमाइश में डाला और उसके तख्त पर एक जिस्म यानी जसद डाल दिया। ये जसद या जिस्म दरअसल सुलेमान अलैहिस्सलाम के उसी अजीबुल खिलकत बेटे की तरफ इशारा है। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि हजरत सुलेमान उसे अपने तख्त का वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में फौत हो गया। कुरान मजीद या अहदीस व अक़वाल के अंदर तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस बेटे का या उसकी माँ का वाज़ेह नाम नहीं मिलता। अलबत्ता ये गुमान किया जाता है कि आपका ये बेटा मलका बिल्कीस से ही पैदा हुआ होगा, और चूंकि मलका सबा जिन्नात की औलाद थी, इसलिए एक पैगंबर और आधी जिन्नी के मिलाप से इस तरह की मखलूक की पैदाइश हुई।